Hello friends, it's standard 7th and we are studying maths. In lesson number 1, integer, our next topic is multiplication of integer. Earlier we have seen the properties of addition and subtraction. The next topic is multiplication. We have experienced multiplication of numbers. So in this way, when we multiply integer, we have to follow some integrated properties. The first property is multiplication of two positive integers. Multiplication of two positive integer. It means when we do multiply of two positive integers, then what will be the answers? Positive integer multiplied by positive integer, it goes to positive integer. इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आने वाला आंसर है ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद यदि हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और दूसरा नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तब आंसर कैसा आएगा, तो उसे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन नेगेटिव एंड वन positive integer. So when we multiply one negative integer by one positive integer, our answer will be in negative side. So negative integer multiplied by positive integer is equal to negative integer. Next topic is when we multiply two negative integer, multiplication of two negative integers. What will happen? Minus means negative integer multiplied by negative integer, the answer will be in positive sign. Minus minus plus. Negative integer is multiplied by negative integer, the answer will be positive integer. These are three basic concepts which we have to follow when we do multiplication of integer. Here sometimes we have more than two integers. Then which types of rules we follow? Here the topic is multiplication of more than two integers.
when we have more than 2 means suppose 3 integer, one is negative integer, another is also negative integer, next is also negative integer, then what will be the answer? And when 4 negative integer will be multiplied, then what will be the answer? There are two examples of this type. There are 3 negative integers. 3 is a odd number, so the multiplication is given in odd times. The answer should be negative integer. अर्थात जब अपना जो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है वो ऑड टाइम में दिया रहेगा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, तब जो आने वाला आंसर है वो नेगेटिव रहेगा। और जब हमारा मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस इवन टाइम्स दिया हो, यहाँ जैसे 1, 2, 3, 4 टाइम्स दिया हुआ है, 4 ये इवन नंबर है, ऐसी स्थिति में आने वाला जो आंसर है पॉजिटिव में रहेगा, मींस पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो इस तरह से ये जो 4 बेसिक कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन में, हम लोग इनमें हमेशा मिस्टेक करते रहते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स होती है हमारी, ये बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि when we do multiply, we have to clear our concept of multiplication of integer. So you have to write these rules in your notebook. Then we try to understand the properties related to multiplication. So the first property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी, हम इसके पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर को यदि इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला जो आंसर है वो इंटीजर रहेगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां मैंने एग्जांपल नहीं लिए हैं, पर इसके पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इनके एग्जांपल सब पढ़ चुके हैं। और इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी में इंटीजर के साइन में आप लोगों को समझा देता हूं कि यदि 2 इंटीजर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और तो आने वाला आंसर जो है वो भी इंटीजर रहेगा, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। यदि हम इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज 3 into 2 6 होता है और 2 into 3 भी 6 होता है। इसका मतलब कि जो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये इजीली हमें समझ आती है कि यदि हम ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आने वाले आंसर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमें थोड़ा सा गौर करना है कि जहां एडिशन का साइन था, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा।
यानी दो से ज्यादा जब इंटीजर्स होंगे तो किस तरह से करेंगे, ये मल्टीप्लाइड बाय b इंटू सी, इनका क्रम चेंज करके भी हम, या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है इसको। तो पहले हमने b इंटू सी एक ग्रुप लिया था, इस ग्रुप को चेंज कर दे या अल्टरनेट कर दे, a इंटू बी लिख दे और फिर c से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन में और भी प्रॉपर्टीज होती है, तो इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे एडिशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने देखा, तो उसमें हमने क्या किया था, जीरो को यदि किसी इंटीजर में प्लस करो तो आने वाला आंसर वही नंबर होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस -4 ही होता है। उसी तरह से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इसमें 0 और 0 की जगह हमें 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि 0 इंटू इंटीजर 0 होगा, इसीलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 0 मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगी। तो क्या रहेगी, तो इसमें अगर किसी इंटीजर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को यदि किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला आंसर जो है वही इंटीजर होगा। तो दैट इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, 1 इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 0 इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो डिफरेंस है हमें समझना जरूरी है। इसके बाद जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ये 1 की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हुई, तो यदि 0 से हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें आंसर कैसा मिलेगा, इसीलिए वो जो आंसर आता है उस आधार से जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में देखी जाती है। इसे बोलते हैं जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कि किसी इंटीजर को यदि हम 0 से या 0 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला आंसर 0 होता है। इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई होने पर इंटीजर की वैल्यू नहीं रहती, आंसर 0 रहता है। ये हो गया जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो इसके पहले हमने एडिशन में नहीं देखी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें होता क्या है, इसमें भी एक एडिशन में होती है और एक सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में किस तरह से, ये मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, a मल्टीप्लाइड बाय कर्व ब्रैकेट दिया हुआ है b प्लस सी, तो ये जो ब्रैकेट है इसका इस a से रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है। यहां प्लस का साइन है, इसका मतलब ये इंटू बी, ये इंटू बी,
ए मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर प्लस का साइन है, ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ए मल्टीप्लाइड बाय सी। तो इस तरह से दो ग्रुप्स हमें मिले। इसका मतलब हमने किया क्या, तो ये जो टर्म्स दिए थे इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये एक ग्रुप हो गया ए इंटू बी, और ये दूसरा ग्रुप हो गया ए इंटू सी। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जहां प्लस का साइन है वहां माइनस का साइन रहेगा, तो b माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इस तरह से इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें अंडरस्टूड करके आने वाला एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो आशा है ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ आई होगी। इन पर आधारित एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3।